Hi guys, this is Dhananjay here. So ये जो session है, what is it all about? Yeah, you must have got a call from Moksh and they said that, we are going to talk about your journey of a doctor. We are going to talk about the NEET and after NEET. So ये majorly जो session है, what we cover in this session is NEET के बाद में क्या? अभी आपका focus 100% NEET के ऊपर है और पूरी journey जो है NEET के बाद में है, ठीक है? So we are definitely going to talk about the journey of a doctor. एक लड़का जो अपना लड़का या लड़की of course जो अपना सपना लेके they appear for NEET in this 10th standard 9th standard. You just feel that your inclination is towards biology and you prefer to become a doctor. You want to do some good work. You don't want to be in the healthcare segment and all those things. Yeah, at that time you did not know the kind of competition that you have in India is absolutely different. 16 lakh students appearing for government medical seats, which are only 35,000. And what happens is, पहले आपको लगता था नीट एक रास्ता है जो डॉक्टर बनने के लिए वो रास्ता मिल आपको it gives you a way to become a doctor. Yeah, finally you come to a conclusion. ये एक filtration system है. अब ये लग रहा है कि यार अब घुस तो गए, अब कैसे भी करके इतनी बड़ी क्यू में सबसे आगे आना है. कितना आगे आना है? ये 35,000. it works to approximately 2.2% सक्सेस रेशियो और ये भी बटा हुआ है आधा आधा ओपन एंड विदाउट में. सो बेसिकली नीट के बाद में सभी स्टूडेंट्स 6 रास्ते में से एक रास्ता चुनते हैं, ठीक है? पहला रास्ता ये है कि जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में चला जाता है, जो टॉप 2% में जो आते हैं वो मेरिट के बेस के ऊपर यहाँ चले जाते हैं, ठीक है? नेक्स्ट, जैसे ही मेरिट नीचे आया, फॉर एग्जांपल you got 400 marks. Now at 400 you cannot be above 90%. You'll be approximately 90 percentile of a student. Okay, that's what the every year's data suggests. Now in 90 percentile you cannot get into government because we know that 98 percentile से ऊपर होगा वही बच्चा जाएगा गवर्नमेंट में. सो आप क्या करोगे? आप भागना चालू करोगे, काउंसलिंग सेशंस में अटेंड करना चालू करोगे, आपको कॉल जाना चालू करेगा कि भाई यहाँ पे ज्वाइन कर लो. धीरे धीरे पता चलेगा that yeah, this MBBS seat, every seat is being sold at 60 to 70 lakh rupees. These are extremely difficult way, extremely expensive way to become a doctor, correct? So this is that second roadmap where you have, and this is only for MBBS. Huh? If you are thinking of becoming a specialist, if you are thinking to become, let's say, cardio, neuro, pediatric, or gynec, or whatever, the PG seat, the postgraduate seat is going to cost you at least 1.5 crore or 150 lakhs. So and nobody wants to just remain MBBS, correct? All of you really dream to become some specialist, correct? So in that case, this route becomes such an expensive route that most of the students come out of it. Though there are 31,000 seats in India, you won't believe more than 40% of the seats go empty every year. This is the situation. So this is not something which is preferable by people because of the high expense. This is the best option that you have got, but only 2% of the students can get in. Then what happens? Those who want to become MBBS, they choose the third roadmap. Around 15,000 students choose to go abroad because Medical Council of India has given the complete list of universities, the government universities, the private ones, and the one which is in abroad in various different countries. Yeah, so this becomes a very low cost option for students with guaranteed admission. So you must have heard students going to Russia, Ukraine, China, Philippines, these, that, all those kind of things. Yeah. Now, because you don't have so much of money, this plan A and this becomes plan B to become a doctor.
What are the other fourth, fifth, and sixth? Fourth is you compromise. Here the students compromise. They become dentist. They have now kept their dream of becoming a doctor aside. They'll become homeopath. They'll become Ayurvedic. So these are not the original allopathic MBBS stream that you have chosen for. Okay, lot of students go in that. Around 20% of the students, 19 to 20% students, they repeat. I couldn't get this year, I'll try my next year. And sixth is the biggest place where BSc, maximum students go for BSc. Around 70% of the students, they say, hands up sir, मैं नहीं बन सकता, I don't want to become, remain in the race. ये 6 रास्तों के सिवा और कोई 7वां रास्ता नहीं है जहां पे आपको जाना है. These are the 6 roads where you can go for. Now, those who have decided to become doctor, they choose this. Those who are ready to wait to become a doctor or compromise in there. So these are the 2 types of people that you can see. Now, people don't even know that BSc kiya, there are roadmaps in which you can do BSc and then transfer yourself to MBBS. Because people think that BSc liya to we have to now forget becoming a doctor. No, there are a lot of people. So this entire webinar is going to open up your eyes. How can I ensure that I become a doctor from 2020 itself without wasting my year? Or in case I don't feel comfortable to go this year, I don't have money or I don't have merit, I want to try again NEET, I want to wait in India, I don't, in Corona time, I don't want to travel, I'm not too sure, I just don't have, resources to get into MBBS race this year. No problem, get into BSc and then you can shift to MBBS. So this webinar is divided into 3 parts. One, the journey of a doctor that I'm talking about right now. Second, this is all about the license examination. So license is a different story, degree is a different story in case of medicine. This will be taken up by Mr. Chirag. And 3, this is about how you can do BSc to MBBS, okay, through Philippines. So there are a lot of scams and frauds which are happening with the Indian students by the agents. They promote something very, very wrong things on the internet, on the YouTube, on the Instagram. They'll call you, agents will. So what is it about MBBS via BSc? So this is the 3rd session. So we are all going to, that will be taken up by Miss Mohini. So 3 of us are going to present the whole stuff. I am Dhananjay here. I am the CEO of Moksha. Let me tell you, there are a lot of changes which have happened in past. 2018 से 2019 में rules में बहुत बड़े changes आ गए हैं, and these changes have made MBBS abroad as one of the, after if somebody doesn't get in the government, they straight away go for abroad. You know why? Because of these rule changes. What the rules have changed? What has happened to the rules? In 2018, if you passed from Indian Medical College, if you got the degree from an Indian medical government or a private college, you can directly approach MCI and get the license to practice. Remember guys, you cannot practice medicine, or you cannot work in a hospital, you cannot diagnose a patient, you cannot open a clinic without having a registration number and a license. This is given by MCI. Okay, so once you get a degree, automatically you can approach the MCI and MCI will give you the license. After you get the license, you can become postgraduate or a specialist or MD or MS, surgeon or specialist on any of one of the so many specialties which are available. But if you had come from abroad, there were, discrepancies, there was differences which were created between if you pass from India and abroad. अगर आप अब्रॉड से आए तो आपको एक लाइसेंस एग्जामिनेशन पास करना पड़ता है.
If you do not pass this exam, you cannot get the license, you cannot practice, or you cannot do PG. This is the way if you are coming from foreign country. So till 2018, people were thinking, okay, I have one house, I'll sell it, I'll get it 60-70 lakh rupees, I'll just buy a degree for, go to the private college, pay them, they'll get you the direct degree and the license. 2019, the whole system changed. You know what? Whether you are from India or abroad, every student has to give the license examination. This is that license examination. Whether you are abroad, that FMG is changed to next. Whether you are from India, you were earlier not giving any license exam, now you have to give. So now everybody is at par. If you qualify the national exit test, that's the next, you get a practice license, and then you can do PG. If you come in merit of that next, naturally you would have qualified, plus you are on merit, then you will get into PG seat also. So you get a license plus PG seat. So from the only one examination, you have three things: replaced FMG for the students who are coming from abroad, common examination for Indian or students coming from abroad. For both the things, for getting the license or getting the PG, for everybody, one common examination, national exit test, will be conducted. This system is derived from an American system, which is USMLE Step 1 and 2 CK. These are the exams that you give to reach here in USA. Okay, we are going to learn about this in the second session by Mr. Chirag, that how can you do MBBS in India or any other country, and still reach into USA for MDMS. So, or how do you prepare for this license examination, and you get this one, or you can prepare for this one. So this is the most important part of your journey now, that you have to clear your license examination. So entry is NEET, exit is next. This is how for common, for India and abroad. So now अभी सबको लग रहा है कि मैं 70 लाख में MBBS का सीट लूं, फिर suppose something goes wrong in next, my money is gone. Parents are not wasting their money. They say 20 lakhs में MBBS abroad foreign का कर लूंगा, आगे का national exit test तो वहीं का देना है मुझे, सेम एग्जाम देना है जो MBBS प्राइवेट वाले को देना है, वही गवर्नमेंट को देना है, और वही मुझे फॉरेन में जाके देना है. अब देयर इज नो डिफरेंस. पहले ये फर्क था, नाउ देयर इज नो डिफरेंस. So that created a surge in everybody started thinking about going abroad. I hope now you have understood where this abroad came from, because it is easy to get into abroad. Yeah, Simran, you are right. Simran, if I'll tell you a very simple thing. अगर आप इसमें है ना, लिमिटेड सप्लाई है, ठीक है, अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ स्टूडेंट है, लिमिटेड सप्लाई ऑफ सीट्स है. आपको समझना पड़ेगा कि आप एक ऐसी चीज में घुसे हो कि जिसमें रेस बहुत स्टिफ है, कंपटीशन है. तो आपको इजी कैसे कर सकते हैं उसका रास्ता मैं बता रहा हूं. ये वेबिनार खत्म होगा तब तक आप एक चीज का क्लैरिटी आ जाएगा कि अगर आप बेसिक स्टूडेंट हो, वो भी आराम से डॉक्टर बन सकता है, वो भी पीजी तक जा सकता है, वो इंडिया में प्रैक्टिस कर सकता है, वो यूएस में प्रैक्टिस कर सकता है. नीट का जो हवा घुसा दिया है ना आप लोगों के मन में कि नीट में 550 प्लस लाओ तो ही आपकी लाइफ बन सकती है, दिस वेबिनार इज गोइंग टू क्रश ऑल दोज फियर्स फ्रॉम योर माइंड. फ्री कर दो अपने माइंड को. सभी लोग आराम से जियो, पूरी मेहनत करो, और ये सोच के मत करो कि मेरा क्या होगा. तो आपका वही होगा जो आपने सोचा है, बट ये जरूर सोचो कि अगर 16 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं
और अगर 98 परसेंटाइल को सिर्फ बाहर निकालना है और 2 परसेंटाइल को इंडिया में एडमिशन मिलने वाला है, आई ट्राई माई प्लान ए विल बी दिस, बट अगर प्लान बी में चला गया मैं तो अब्रॉड होके कर लूंगा, क्या प्रॉब्लम है? You can always reserve your seat. You can always have the right way. You can study in some advanced level country. You can go right up to PG in USA. और आप बिलीव नहीं करोगे, अगर 70 लाख रुपया MBBS का लग रहा है इंडिया में, तो आपको लेट्स से MBBS प्लस PG का टोटल कॉस्ट, चलो एक काम करते हैं, आप लोग गैस करो, MBBS प्लस PG का PG इन USA, ये मैं करता हूं प्रोग्राम, इसका टोटल कॉस्ट कितना होगा? चलो आप कोई गैस करो, आप क्वेश्चन पैनल पे आ जाओ और मुझे बताओ, आपके हिसाब से अगर मैं MBBS इन रशिया करता हूं फॉर एग्जांपल, प्लस मैं मेडिकल PG इन USA करता हूं बाय गिविंग USMLE का एग्जाम प्रिपरेशन करता हूं, जैनम सेज 50 lakhs. ओके, नेक्स्ट anybody else want to take a guess? 45 lakhs. Simran says 50 lakhs. Devesh says 20 lakhs. अच्छा, भाव्या says 20 lakhs. ओके, कुणाल says 70 lakhs. Let me tell you now, आप लोग बिलीव नहीं करोगे अब जो मैं बता रहा हूं, ठीक है? अब ध्यान से सुनो, गेस वर्क का टाइम खत्म हो गया, ध्यान से सुनो, रिसर्च करना चालू करो। जिंदगी आपका कोचिंग क्लास वाला सिर्फ नहीं बनाएगा, आपका खुद का रिसर्च बनाएगा, ठीक है? करियर आपकी खुद की रिसर्च बनाएगी। अगर मैं मेडिकल PG इन USA करना चाहता हूं तो मेरी कॉस्ट कितनी होगी? आई एम जस्ट टाइपिंग, क्योंकि आप एक चीज भूल गए कि अगर इंडिया में भी मैं PG करता हूं अगर गवर्नमेंट में, तो मुझे 40,000 रुपीज का स्टाइपेंड मिलता है पर मंथ, पता है ना ये आपको? PG के दौरान 80% का टाइम टीचिंग हॉस्पिटल में निकालना होता है, 20% का टाइम हमको क्लासरूम में निकालना होता है, ओके, स्पेशलाइजेशन के टाइम पे। और जब आप टीचिंग हॉस्पिटल में काम करते हो, दैट योर टाइम यू आर एक्चुअली वर्किंग, यू गेट अ स्टाइपेंड टू डू अ वर्क। सिर्फ 40,000 मिलता है एज अ डॉक्टर, चलो ठीक है, साल का 5 लाख रुपया मिल जाता है, ठीक है, अगर गवर्नमेंट में मिला तो, पर गवर्नमेंट में मिलता नहीं है, इसलिए तो प्रॉब्लम है। PG में कितने में मिलता है? 1.5 करोड़ रुपए में। बट यही चीज अगर मैं US में करता हूं तो आपको मैं बताता हूं मेरे को कितना पैसा PG का स्टाइपेंड कितना मिलता है। ये PG जब करते हो तो उसको क्या बोलते हैं? तभी आप रेसिडेंट डॉक्टर होते हो हॉस्पिटल में, करेक्ट है? तो आप टाइप करो एवरेज stipend during my residency as a physician in a hospital for a doctor in USA। पढ़ो आप, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या लिखा है, थोड़ा सा रिसर्च कर लो, आपको समझ में आ जाएगा कि PG में कुछ भी नहीं पैसा खर्चा करना है, मुझे $60,000 मिलेंगे, इसका मतलब है करीब करीब 45 लाख रुपीस मुझे मिलेगा। 4 साल का एवरेज रेसिडेंसी होता है, ठीक है, कैलकुलेट कर लो, आपको 1.5 करोड़ से ऊपर मिलेगा। इंडिया में 1.5 करोड़ आपको प्राइवेट में देना पड़ेगा। अब आप बोलो क्या चॉइस करोगे? क्या आप इंडिया की प्राइवेट कॉलेज में आप MBBS से PG में ट्रांसफर होंगे पैसा देके, या आप MBBS के दौरान जो स्टेप 1 एग्जाम देनी है और स्टेप 2 एग्जाम देनी है उसके अंदर आप घुसना चाहोगे? चलो, व्हाट विल बी योर चॉइस? आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि यार हर चीज पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। सुपर से भी ऊपर है। एब्सोल्युटली। अब मैं आपको बताता हूं कि आप लोगों को लाइसेंस एग्जाम का आपको इंपॉर्टेंस नहीं पता था, अब आपको मैं बताता हूं रूल जो 2019 में चेंज हो गया। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दैट रूल। तो ऐसा ही कुछ चेंज इंडिया में भी हुआ है लाइसेंस एग्जाम के लिए। तो NMC ने कुछ नया बिल डाला है जो पार्लियामेंट में राज्यसभा में पास हुआ है। ये बिल 2019 जुलाई 29 को पास हुआ है। ये आपकी कंप्लीट जर्नी इसने बदल दी है। NMC बिल 2019 इन राज्यसभा, क्या बिल की आई देख लो आप।
अगर आपको ऐसा मैं बोलूं कि यार बिल्ली, आपको बिल ये जो है इसके अंदर में अगर आप नेशनल एग्जिट टेस्ट पास करते हो तो ही आपको लाइसेंस मिलेगा, ऐसा लिखा हुआ है ये बिल में। ये सारे डॉक्टर जो रास्ते पे दिख रहे हैं ना, देवर बिकॉज ये लोगों ने 70 लाख में सीट खरीदी थी और फिर इनको ये राज्यसभा में बिल पास हो गया, भैया लाइसेंस की एग्जाम देनी पड़ेगी। एवरी पर्सन दे केम ऑन रोड, एवरी डॉक्टर, एवरी स्टूडेंट, के भाई ये सब क्या चल रहा है सर। मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल रूल क्या चेंज हो गया। सभी लोगों को समझ में आ गया कि अब मुझे पैसा खर्चा करने का कोई सेंसिबिलिटी ही नहीं है पूरे इंडिया में। कोई भी प्राइवेट कॉलेज में जाऊंगा मैं तो मुझे पैसा देना पड़ेगा इतना सारा। और हेल्थ केयर पूरा चेंज हो रहा है। मुझे अगर उसके बाद में भी एग्जाम देनी पड़ेगी लाइसेंस के लिए तो फिर मैं पैसा किस लिए दे रहा हूं भाई। पहले कैसा था, डिग्री भी ले ली, लाइसेंस भी ले लिया, मैं अपना काम पे लग गया, मेरी करियर बन गई। अब मेरी कोई गारंटी नहीं है करियर बनने की, इट इज गेटिंग डाउनलोडेड। लेट मी फर्स्ट अंडरस्टैंड इफ यू हैव अंडरस्टूड, you have understood the importance of the license examination like USMLE or national exit test. Will you study for such exam during your MBBS or will you wait for this or it's not important? आपके स्क्रीन के ऊपर मैंने एक पोल डाला है, प्लीज पार्टिसिपेट ओवर देयर। हियर यू आर, आई एम शेयरिंग द रिजल्ट्स विथ यू। 52% of the students says it's very important। 44% से सर मे भी देखते हैं, ऐसा कौन सा एग्जाम दे देना है। ऐसे थके हुए जवाब मत दिया करो, पढ़ो अभी। A key provision for bill brings uniformity in medical education, common final year MBBS examination throughout India. This will be called national exit test। इससे दो चीजें होंगी, एडमिशन टू पीजी कोर्स एंड ऑब्टेनिंग अ प्रैक्टिस लाइसेंस। आपका लाइसेंस भी इसी एग्जाम के थ्रू होगा और एडमिशन का पीजी में भी सीट यहीं से मिलेगी। अगर इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, चाहे आप फॉरेन से आते हो तो भी वैसा ही होगा। फाइनल MBBS exam to be treated as an entrance test for PG and screening test for students who graduate in medicine from foreign medical colleges। फॉरेन से आते हो तो भी वही एग्जाम देनी है आपको, आपका पीजी का एंट्रेंस भी वही एग्जाम होगा और लाइसेंस देने के लिए स्क्रीन करते हैं वो भी एग्जाम वही गिनती करेंगे। कैन यू बिलीव one single exam for Indians in studying in India or studying in abroad, getting PG seat as well as the license? This is called next। मैंने पहले ही बताया। फिर भी 45% स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सर मैं तैयारी करूं, नहीं तो मुझे तो डिग्री मिल गई तो बस है, मुझे लाइसेंस का क्या करना है। मैं तो डिग्री को फर्स्ट क्लास अपनी वॉल पे लगाऊंगा और हर रोज देखूंगा, मुझे थोड़ी पेशेंट्स को हाथ लगाना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? If you don't have the license, you can't touch a patient, you can't cure a patient, you can't। So things have changed drastically। But if you don't, okay, let's see what happened to the students who like you who said maybe। ये है ना ये जो एग्जामिनेशन तो थी, लाइसेंस एग्जामिनेशन फॉरेन से आने वालों की, ये लोगों ने लाइसेंस एग्जाम दी, तो उनका क्या हो गया? ये जो मे बी वाले लोग हैं उनका क्या होने वाला है? Maybe you are right, Simran, but let's see what happens to the students who think like this. Okay, let's not assume that everybody is appearing for NEET. Okay, you are right, Simran. That's a possibility. What is there? But generally, I feel those who want to give, they come to this 6 o'clock webinar. Only those people come who want to become a doctor. Generally, so let's see what happens to the FMG students. Okay, FMG passing percentage from 2015 to 2018। चलो 4 साल का निकालते हैं, कितने लोग पास हुए जो जो ये एग्जाम देते थे लाइसेंस? 14%। बाकी के 86% का क्या हो गया? दे फेल्ड।
कैन यू बिलीव इट? अभी समझो एक स्टूडेंट गया, 6 साल पढ़ाई की, 5 से 6 साल उसने एमबीबीएस की पढ़ाई की, घर से दूर रहा, वहां से डिग्री लेके आया, पास हो गया, 20 से 25 लाख रुपया पेरेंट्स का लगा दिया पूरा, इतने बड़े सपने लेके गया था, वो बन के बाहर आ गया, एवरीबडी इज वेरी हैप्पी। और अब जाके वो एफएमजी देने निकला, वो बोलता है सर मैंने सुना तो था बट तभी मेरे को इतना सीरियसनेस नहीं था ये एग्जाम के लिए, तो मैं जब 5वें साल में आया तभी मैंने तैयारी की इस एग्जाम की, क्योंकि एग्जाम तो मेरे को, जो लाइसेंस एग्जाम हो तो 5वें साल के बाद में आती है, तो मेरे को जल्दी नहीं थी कोई। इसीलिए ये जो सोच है ना अपनी, उसका ये नतीजा है। फर्स्ट ईयर टू 5th ईयर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, यार हर साल में आपको कुछ ना कुछ नए सब्जेक्ट सिखाए जाते हैं, इधर एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, फार्मेकोलॉजी, तो ऐसा हर साल आते रहेगा, करेक्ट है। टोटल एमबीबीएस में 19 सब्जेक्ट सिखाएंगे, इसको पूरा 4.5 साल से 5 साल लगेगा आपको सीखने को, बराबर। और पूरा का पूरा सिलेबस आपको एफएमजी या तो नेक्स्ट के अंदर आने वाला है। जो बच्चा ऐसा सोचता है कि मैं 5वें साल में आके मैं तैयारी करूंगा, वो शायद 86% में रहता है जो फेलियर है। जो बच्चा ये समझता है कि यार मेरी लाइफ ही इसी एग्जाम के ऊपर डिपेंड है और जो मुझे सिखाया जा रहा है, सारे 19 सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, तो तैयारी पहले साल से करनी है मुझे, धीरे धीरे सेकेंड ईयर में आऊंगा तो मुझे ये 3 प्लस ये 5 सब्जेक्ट की तैयारी होनी चाहिए, 8 सब्जेक्ट की, यहाँ पे होगा तो 4 दूसरे आते हैं, तो टोटल 12 सब्जेक्ट की तैयारी मुझे करनी है। ऐसे प्रोग्रेसिवली आप आगे बढ़ते जाओगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता मेरिट में आने के लिए। बट इंडिया में कैसा है कि यार सर ये मेरे घर के बाजू में है ना एक छोटा सा एजेंट है, वो मेरे को किर्गिस्तान भेज रहा है, सर मैं चला जाऊं क्या? ये ऐसे बेवकूफ जैसे सवाल पूछते हैं। सर मेरे गांव में एक बच्चा है ना, वो गया हुआ है, वो जॉर्जिया गया हुआ है, तो मैं भी सोच रहा हूँ वहीं पे चला जाऊं। बॉस, यू आर एडल्ट्स नाउ, ऑल ऑफ यू आर एडल्ट्स, you should have a basic sense to choose a country and scientifically searched out universities on your own instead of having such useless thoughts that sir दूसरा कोई गया है तो मैं भी उसी के हिसाब से कर लूं। That's never going to take you anywhere in life. ये चीज आपको समझना पड़ेगा कि आपको बहुत ही तरीके से इसके बारे में डीप नॉलेज लेना पड़ेगा। चाहे मैं इंडिया में करूं तो भी मुझे लाइसेंस एग्जाम है, चाहे मैं अब्रॉड में करूं तो भी वो लाइसेंस एग्जाम है। अब आप क्या कर रहे हो वो आपके हाथ में है। अगर अब्रॉड जाता हूं तो मैं अभी से बताता हूं, क्योंकि ये इजी है इसलिए 15,000 स्टूडेंट चले जाते हैं। जो भी क्वालिफाई हुआ अब्रॉड जा सकता है, ठीक है ना। कोई कोई ही टॉप कॉलेज ऐसी रहती है जो पूछती है कि भैया फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में 60% चाहिए, केमिस्ट्री बायो में 70% चाहिए, ये चाहिए, नीट में इतने मार्क्स, वो सब कोई कोई, अभी रशिया में क्रीमिया है या कजान है, ये सब पूछती है, बाकी कचरा पट्टी है पूरा। 450 यूनिवर्सिटीज को मेडिकल काउंसिल ने अप्रूवल किया है, 400 डस्टबिन में डालने लायक है, 50 वर्ल्ड रैंक यूनिवर्सिटीज जैसी है। अब चूज आपको करना है कैसे जाना है। आज मैं जितना हो सकता है मदद करूंगा, बट आप लोगों में बेसिक सेंस होनी चाहिए कि अगर लाइसेंस एग्जाम के ऊपर मेरी पूरी जिंदगी खड़ी है तो हाउ कैन 45% ऑफ द स्टूडेंट से कि सर मैं इसकी तैयारी करूं, नहीं भी करूं फिर भी मुझे करियर अच्छी चाहिए। दिस आर नॉट गोइंग टू, दिस आर नॉट मेकिंग एनी सेंस टू मी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड नाउ। Kunal, it is not tough. If you don't understand the concept of license examination, if you listen to those, so what we are going to do is, today you must hang on till the end of this webinar, okay? And then you will start visualizing your next 9 to 10 years. अपने लाइफ का, एजुकेशनल करियर का, मेडिसिन में सपना पूरा देखो, सही तरीके से देखो, ठीक है। आज मैं आपको ट्रेलर दिखा दूंगा आपके लाइफ में क्या क्या हो सकता है।
अब क्या होना है वो आपके हाथ में है, नसीब के ऊपर भी नहीं है, आपके हाथ में है. This is not because the exam is tough. This is because of those maybe students. And this is also because जब 400 डस्टबिन की यूनिवर्सिटी है और 50 रियल गुड यूनिवर्सिटीज हैं, तो naturally you are going to make a mistake because you are going to listen to your friend, you are going to listen to your agent, you are going to listen to your neighbor. What he did, I will do. You are going to listen to those useless YouTube promoters because you'll get influenced by them. So all I'm trying to tell you is, if you apply your own mind, if you do your own research for 1 hour and you come to conclusion by visiting the government website, not those useless agents websites, then your life is set. You will never say maybe, and you will never go to these dumb colleges. I hope you are able to understand. All the people who have chosen university rightly and those who are going for the top colleges, absolutely there is no problem. I hope you have now understood. It's not about difficulty level. If you take abroad, चलो अब NEET प्लान A है 550 के ऊपर. हमको सबको पता है जितने भी सामने स्टूडेंट्स दिखेंगे उसके 2% से ज्यादा स्टूडेंट्स को नीट के थ्रू गवर्नमेंट मेडिकल में नहीं मिलने वाला. 98 परसेंटाइल 550 के नीचे रहेंगे. उनका क्या होगा? दे विल हैव अब्रॉड एज एन ऑप्शन. The universities where you study can be, very low, like 15 lakhs to 20 lakhs to, things like that for throughout. I'm talking about throughout the journey. I'm not talking about 1 year. इंडिया में 10-12 लाख रुपए एक साल का होते हैं. पूरे MBBS की बात कर रहा हूँ. एंट्रेंस एग्जाम नहीं रहेगी. यू जस्ट हैव टू एंश्योर दैट यू आर नीट क्वालिफाइड. सो सितंबर में आपका एग्जाम रहेगा. 13 सितंबर को नीट है. अप्रोक्सीमेटली 10 अक्टूबर को आपका रिजल्ट आएगा. पहला बैच अक्टूबर 30 को इंडिया से निकल जाएगा. So those who have reserved their seats and they are not waiting for last minute, sir, नीट का रिजल्ट आने के बाद में देखूंगा, सब कुछ लास्ट मिनट करना है, तो फिर you be ready to waste some more time in life. क्योंकि there will be some universities will have batches in the intake in the February, March. You can waste your 6 months and go there. So that's all possibilities, not a problem. MCI approved colleges are there. And then if you want super duper infrastructure, you choose the right countries, any country of your choice, which is more advanced than India, which is not like, a Kyrgyzstan, Pakistan. ये सब में students जाते हैं. You will not believe this. People go to Iran, people go to Kyrgyzstan, people go to Georgia. Now these are not the countries to be in. I hope if you want to, your basic sense यही है कि अपने से आगे है जो कंट्री उसमें चला जाए. ये नेपाल जैसी छोटी छोटे कंट्री में जाके प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाके अपना टाइम बर्बाद मत करना. So we choose the developed countries, not underdeveloped countries. Within that developed country, we choose a top university. Now how? I will tell you within 5 minutes. You will learn how to choose the top university. And then after that, you won't need any agent. On your own, you will finalize. And I told you, please don't be in that 45% maybe stage. Make sure that life का सबसे बड़ा important exam आपके life जो है, which leads to PG and which gives you the license to practice as a doctor, उसकी तैयारी के लिए क्या solution है वो convince हो, तभी MBBS चालू करो. चाहे इंडिया हो चाहे अब्रॉड हो. आंख बंद करके भागा भागी मत करो, क्योंकि आपके जेब में से पैसा निकालने के लिए बहुत सारे एजेंट्स बैठे हुए हैं इंडिया में, हर गली में. और वो नहीं ढूंढेंगे तो आप उसके पास ढूंढ के जाओगे. दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन. सो यू हैव टू बी वेरी श्योर. व्हाट यू नीड इज अ प्रॉपर करियर प्लानिंग, नॉट दीज यूजलेस एजेंट्स. ये लाइफ में से निकाल दो कंसेप्ट. किस टाइप के एजेंट्स रहते हैं? छोटे छोटे एजेंट्स,
मैं सर मेरी सिटी में है ना, मैं तो अभी मैं कहाँ हूँ, मैं करनाल के बाजू में हूँ, कहाँ पे छोटे से जगह पे। मैं कहाँ पे, मैं मुंबई आपको मिलने नहीं आ सकता, मैं दिल्ली आपके ऑफिस में नहीं जा सकता सर, यहीं पे बाजू में एक मिल गया मुझे। जैसे हम लोग चूज करते हैं कोई सब्जी भाजी, वैसे नहीं होगा करियर सेट अपना। सीरियसली इसको थॉट प्रोसेस देना पड़ेगा, किसी को आपकी करियर को मोल्ड करना पड़ेगा। सही टाइम पे सही चीज, हाथ में टूल्स होने चाहिए, आपको चैलेंजेस पहले से पता होनी चाहिए। वो आदमी को आपकी करियर में उतना इंटरेस्ट होना चाहिए जितना इंटरेस्ट आज वो आपके पैसों में बता रहा है, उतना सच में करियर में भी होना चाहिए, तभी वो जस्टिफाई कर पाएगा। अदरवाइज दीज एजेंट्स विल नॉट हेल्प यू। यूट्यूब पे आके गलत सलत मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना। एक आता है बोलता है कजान फेडरल यूनिवर्सिटी जो है ना, उसमें 5 साल का कोर्स है। पूरे रशिया में 5.8 ईयर्स का कोर्स है, सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में 5 साल का कोर्स है। सो दीज पीपल फूल यू लाइक दिस। देन देर आर सम स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल अभी कोई बच्चा है 2019 में किर्गिस्तान गया, उसको पता है कि किर्गिस्तान में कुछ भी नहीं है, मिल गया, अभी पहुंच गया, गलती कर ली, 7-8 लाख रुपया एजेंट खा गया। अब पापा के पास पैसा नहीं है कि वो वापस बुलाए और वापस से जर्नी शुरू करे और झगड़ा करो और हजारों स्टूडेंट्स के बीच में बैठे हो। ऐसे हर साल 1800 स्टूडेंट्स को उल्लू बनाया जाता है किर्गिस्तान। एकदम लो क्वालिटी का एनवायरमेंट, लो क्वालिटी का टीचिंग, low quality ka, everything is extremely bad environment. Then what happens, he understands he is not going to become a doctor, so what he does, he becomes an agent. So in 2020 he will come here, he will contact everybody who is trying to become a doctor and he'll say मैं वहीं पे रहूं, मैं आपको संभाल लूंगा। और पेरेंट्स क्या करेंगे, अरे यार ये तो बेस्ट है, इसका बच्चा है ये तो। अब उनको पता नहीं है ये स्टूडेंट एजेंट बन चुका है, क्योंकि वो फंस चुका था 2019 में, किसको है किसी। 2021 में कौन सा एजेंट आएगा इंडिया में वापस, जो 2020 में यहां से जाएगा। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। सो गाइस, this is what I am the CEO of Moksha, and I happen to guide thousands of students in the last 4-5 years on various subjects. Medicine is my pet because सबसे ज्यादा उल्लू एजेंटों से स्टूडेंट्स MBBS में बनते हैं। यूट्यूब की चैनल देखते रहते हैं, छोटे मोटे अपनी करियर को इतना सस्ते में खत्म कर देते हैं। दैट्स व्हाई वी आर इन दिस लाइन, ओके, सो वी आर नॉट गोइंग टू लेट दैट हैपन। सिंपल क्राइटेरिया अपने खुद के लिए बना लो यार, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। मैं आपको सिंपल पूछ रहा हूँ, खुद को बताओ, मुझे मत बताओ, खुद को बताओ। आपको दो चॉइस देता हूँ, एक ऐसी चॉइस देता हूँ जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, ठीक है ना, इंडिया हो या अब्रॉड हो, जिसको 80 से 100 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस हो, करेक्ट, वो वाली चूज करोगे जो इंग्लिश में सिखाता है, या फिर वो वाली चूज करोगे जो प्राइवेट कॉलेज हो, जिसको 1 से 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का एक्सपीरियंस हो, जिसको एक ओनर हो, गवर्नमेंट जैसा कोई स्ट्रक्चर ना हो, वही डिसाइड करेगा जो कोर्स सिखाना है, वही डिसाइड करेगा जो रूल्स लगाने हैं, वही डिसाइड करेगा कॉस्ट क्या लगेगी। प्राइवेट में एक ओनर होता है, गवर्नमेंट में पूरी गवर्नमेंट बैकिंग रहती है। सो इंग्लिश टॉट प्रोग्राम चाहिए आपको, एक्सपीरियंस चाहिए, क्या चाहिए, किस टाइप की यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहोगे, आपको मैंने पोल में डाला है ये सवाल। यू प्लीज पार्टिसिपेट सो दैट आई अंडरस्टैंड। इफ यू आर क्लियर अबाउट योर चॉइस, I will give you a way how to finalize your university within the next 5 minutes. कुछ भी नहीं है इसमें, आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए आपको क्या चाहिए। अगर आप वैसे वाले स्टेज में हो कि सर कुछ भी चलेगा या प्राइवेट दे दो मुझे, मुझे चलेगा सर, मुझे लो क्वालिटी में पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, तो फिर आपका कोई सुधार नहीं हो सकता। इंडिया में ऐसे एजेंट्स हर रोज आते हैं, हमारे वेबिनार पे डेली एजेंट्स आते हैं, डेली, ये सुनने को कि ये धनंजय सर सबको क्या बोल रहे हैं, हमारा कौन सा भांडा फोड़ रहे हैं, हम कैसे बच्चों को समझाएंगे अगर ऐसे ही करेंगे तो उसका रास्ता बनाने के लिए ये डेली होता है। 89% of the people who voted
दे अंडरस्टैंड दैट जाना है तो गवर्नमेंट में जाओ, रूल्स रेगुलेशन सारे अच्छे होते हैं, गवर्नमेंट की हॉस्पिटल के एफिलिएशंस अच्छे होते हैं, ठीक है ना। उसके जो पेशेंट्स फ्लो होता है वो मैक्सिमम होता है। सो 11% बोलते हैं सर कुछ भी चलेगा यार, मुझे क्या करना है, मेरी लाइफ में मेरा कुछ होने ही वाला नहीं है, डिप्रेस्ड लोग बैठे हुए हैं। या तो फिर वो एजेंट बैठे हुए हैं, बोलेगा सर किसमें भी डाल दो, बच्चों को किधर भी डाल दो, कचरे में डाल दो। मैं आपको दिखाता हूँ इजीएस्ट वे टू नो कि भाई जो कोई आदमी कुछ भी बोल रहा है, कोई भी एजेंट आपको कहाँ भी भेजने की बोल रहा है, वो कैसे सिलेक्ट करो। गूगल आपके हाथ में है, सिर्फ वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल्स ओपन कर लो। सबसे पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए कि मैं वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल्स में चेक करूंगा, क्योंकि मैंने अपना अभी चॉइस जो है वो फाइनल कर दिया है। मैंने चॉइस फाइनल किया है कि मुझे जाना है गवर्नमेंट में, और जिसको एक्सपीरियंस हो मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट करे, वैसी यूनिवर्सिटी नहीं चाहिए भाई। I need a government college which is having enough of experience. Whichever country that you wish to. For example, highest number of students, they go to Russia and Ukraine. Correct? Sometimes more students go to Russia, sometimes more students go to Ukraine. Let's understand, how do I come to know which university should I go to? Suppose मैंने किसी यूक्रेन के अंदर मैंने सर्च किया वर्ल्ड डायरेक्टरी, बहुत सारी मेडिकल काउंसिल की अप्रूव्ड कॉलेज यहाँ पे सामने दिखाई दे रही है, करेक्ट है। अब किसी ने बोला कि यार कीव मेडिकल यूनिवर्सिटी जबरदस्त है, यू मस्ट पास हियर, यू मस्ट पास फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी। उसके वीडियोस डाले, आपको बोला कि यहाँ पे चले जाओ सबसे अच्छा है, प्राइवेट 1992। सेम कॉस्ट में अगर आपको गवर्नमेंट 150 साल पुरानी यूनिवर्सिटी मिली तो आप किस में जाओगे? same unit, same country, another university which is government, but having lot experiences compared to जहां से हजारों डॉक्टर बन के ग्लोबली प्लेस हो चुके हो, ये फालतू कॉलेज में कौन जाएगा? मैं आपको दूसरा रास्ता बताता हूँ कैसे उल्लू बनाते हैं एजेंट। फॉर एग्जाम्पल यूक्रेन में ही ढूंढते हैं, ठीक है ना। यूक्रेन में आप ढूंढो, आप देखो, एक बहुत सारे यूट्यूब के आपके ऊपर वेबिनार, और यूट्यूब पे ये क्या बोलते हैं, वीडियोस सब लगाते हैं। तरास शेवचेंको सबसे पुरानी सबसे टॉप रैंक यूनिवर्सिटी यूक्रेन की है, और वहां पे मेडिसिन करो। ये फालतूगिरी यूट्यूब पे चलती रहती है। अगर आपने ये वर्ल्ड डायरेक्टरी पे आ गए और सर्च करना चालू किया तो आपको सही चीजें पता चलेगी। Taras Shevchenko is, it may be 1836 की यूनिवर्सिटी है शायद, ठीक है ना। कितने साल हो गए इसको, इतना पुराना यूनिवर्सिटी है, ये दिखाएंगे। आपको लगेगा यार रैंकिंग जबरदस्त है, यूनिवर्सिटी जबरदस्त है। 2020 माइनस 1836 कितने साल हो गए देखो आप, 184 इयर्स यूनिवर्सिटी को हो गए। इतनी बढ़िया यूनिवर्सिटी है, बट आपको वो एजेंट छुपाता है कि मेडिसिन को चालू किए हुए सिर्फ 2-3 साल हुए हैं। विल यू एवर गो टू सच अ यूनिवर्सिटी? सिंपल सवाल है। would you like to go to a 184-year-old university which has never taught medicine? They taught medicine just 2-3 years back. इसी के सामने आपको इसी कंट्री के अंदर अगर मुझे ऐसी यूनिवर्सिटी चाहिए जो 150 साल से मेरे को मेडिसिन पूरे पूरे दुनिया को सिखा रही है, वो भी पॉसिबिलिटी है अगर, तो why would I ever choose a private college or a university like Taras which has absolutely got nothing? Have you understood now? This university is also 1784 की यूनिवर्सिटी है, बहुत पुरानी है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट। पर मेडिसिन कब से शुरू हुआ? 1896 से। इसको 124 साल का एक्सपीरियंस है।
correct? So this is something which is going to suit you in Ukraine. This is how you segregate, you search, you do research on such. ये वर्ल्ड डायरेक्टरी के अंदर आप किसी भी कंट्री का कर सकते हो. फॉर एग्जांपल मैंने बोला फालतू है जॉर्जिया कंट्री, चलो जॉर्जिया का देखते हैं. कोई भी एजेंट आके आपको उल्लू बनाएगा, जॉर्जिया का वीडियो दिखाएगा, जॉर्जिया के बच्चों का टेस्टिमोनियल ले लो, देखो बच्चे कितने खुश हैं, बच्चे क्या बोलते हैं, ये है वो है, सब उल्टा सुल्टा उल्लू बना के दिखाया. आपको बोला जॉर्जियन अमेरिकन यूनिवर्सिटी में चले जाओ. भैया क्यों जाऊं? 2019 में महाराष्ट्र के 150 स्टूडेंट को एक कोल्हापुर के एजेंट ने उल्लू बना के भेज दिए थे. 150 स्टूडेंट्स ऐसा बोल के कि जॉर्जिया में करोगे, पीजी आप अमेरिका में करोगे. और बच्चे मान गए क्योंकि बेचारे एकदम गांव खेड़े के लोग थे. सभी स्टूडेंट से 3-3 लाख रुपया ले लिया और भेज दिया ऐसी खटारा यूनिवर्सिटी में. यह है जॉर्जिया, प्राइवेट कॉलेजेस से भरा हुआ छोटा सा कंट्री. 37 लैक्स का पूरा मिला के 37 लैक्स का पॉपुलेशन है. अब 37 लैक्स इंडिया में एक छोटे से सिटी के अंदर होता है, बड़ोदरा जैसे सिटी में, या छोटा सा महाराष्ट्र में देखोगे तो मे बी नागपुर इज इवन मोर देन बिगर देन दिस. सो एक सिटी जैसा पूरा कंट्री है, और उस कंट्री में कितना हॉस्पिटल होगा आप सोच लो, कितने पेशेंट्स फ्लो होंगे सोच लो, क्या इंग्लिश बोलेंगे सोच लो. लोगों को उल्लू बना के बोलते हैं ये यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, जो नहीं है. सो ऐसा प्राइवेट कॉलेजेस में जाने का कोई मतलब नहीं है. इंडियन स्टूडेंट्स को एब्सोल्युटली दिस awareness is very important. Fantastic. So I think all of you, most of you, okay, I thought Chaitra, you were able to hear my voice absolutely clearly. So speaking about all this, you must understand doing research is good for yourself. Our guys will help you do the research. For example, logo, why people should not go to. So you can, how do I select a university in Russia? Who is going to guide me? Nobody is going to guide me because you don't want to depend on anybody. You are going to depend on yourself. You are going to depend on Indian government websites. What are the problems if I go to Russia? How do I choose my university? Because so many students go to Russia and Ukraine, almost 45% of the students who are sensible, educated, they'd understand the difference between a big country like advanced country like Russia and Ukraine and useless countries, okay, Georgia and all those things. So अगर आप देखोगे इतना बड़ा लॉट जा रहा है, तो रशिया में यहाँ पे भी कचरा भर भर के है. बहुत बड़ा प्रॉब्लम है रशिया. अगर आप सही तरीके से चूज नहीं करोगे तो बहुत संभाल के करना है रशिया में. तो आपको मैं ये देखो, आप इंडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट है, इंडियन एम्बेसी इन मॉस्को. ये हमारी गवर्नमेंट की वेबसाइट है. ये कभी झूठ नहीं बोलेगी. दे आर देयर सपोज टू हेल्प यू आउट. ओके, अब वो क्या बोलती है, एजुकेशन सेक्शन में हमको एक बहुत अच्छा एडवाइजरी दे के रखा है, जो स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, जिसका फायदा ये छोटे मोटे एजेंट लेके कोई भी फालतू कॉलेज में डाल देंगे. ठीक है, तो क्या लिखा है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड अदर प्रॉब्लम्स. यार एक तो बड़ा प्रॉब्लम है कुछ. मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, there is a publicity in India about English medium courses in Russian Federation for medicine. Publicity है. What does publicity mean? Advertisement. ठीक है ना, एडवर्टाइजमेंट है. इंडिया में फेसबुक, इंस्टा पे, यूट्यूब पे आएंगे, आपको ल्योर करेंगे, आपको इन्फ्लुएंस करेंगे कि रशिया में सब कुछ इंग्लिश में है. और रियलिटी क्या है, ये करेक्ट नहीं है. रशिया में सब इंग्लिश में नहीं है. Medium of education in Russian Institute is mostly local language.
try to teach first year 3 years in English. Try to teach you first 3 years in English. फोर्थ ईयर से यू हैव टू स्टडी इन रशियन लैंग्वेज. यार मेडिसिन सीखने जा रहे हैं, फोर्थ ईयर ऑनवर्ड तो सारे क्लिनिकल सब्जेक्ट्स आ जाएंगे. क्लिनिकल सब्जेक्ट्स अगर आप मुझे रशियन में सिखाओगे, इंडिया आके मैं कहाँ से पास करूंगा? एफएमजी या तो नेक्स्ट, मेरा लाइसेंस एग्जाम का क्या होगा? मैं समझूंगा ही नहीं रशियन में इतना सब स्टडीज. तो स्टूडेंट्स मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस ड्यूअल मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन. आप सिर्फ डेस्परेसी में किसी, आपको एम्बेसी वाला भी बुला लेना, रशिया की एम्बेसी में से फोन आएगा कि आप आ जाओ, अपना पैसा लेके आ जाओ, मैं आपको एडमिशन दिला दूंगा. भाई उनको बोलो सर हमारी इंडियन एम्बेसी ने हमको बोल दिया है कि यहाँ तो आपके कंट्री में बहुत बड़ा लफड़ा है. आई विल बिलीव माई इंडियन गवर्नमेंट, आई नॉट बिलीव योर रशियन एम्बेसी ऑल्सो. तो इसको मैंने इन लोगों को मैंने पूछा, सर अभी इतना प्रॉब्लम है अगर, तो एक चीज बताओ, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने 50 यूनिवर्सिटीज को अप्रूवल दिया, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है. इंडियन एम्बेसी बोलती है कि रशिया में 50 यूनिवर्सिटी में प्रॉब्लम है क्योंकि वो लोग इंग्लिश में नहीं सिखाते. और आगे पढ़ो, some institutions which claim to have dual medium, they do not have requisite faculty to teach you even for first 3 years. मतलब 6 साल रशियन में सिखाएगा, कहाँ से बच्चा पास होने वाला है? 3 साल रशियन प्लस 3 साल इंग्लिश, कहाँ से बच्चा पास होगा लाइसेंस एग्जाम? आपको चाहिए 6 साल इंग्लिश. स्पेशल लाइसेंस वाली कौन सी यूनिवर्सिटी है? तो हमने पूछा उनको, सर कुछ तो गाइडेंस करो, बच्चे लोग उल्लू बन के भाग रहे हैं यहाँ से. वहां जाके समझ में आ रहा है कि ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. तो 2019 में रशिया ने, इंडियन एम्बेसी ने आखिर पूरा लिस्ट दिया कि भाई कौन से यूनिवर्सिटी में आप जा सकते हो. एक एक यूनिवर्सिटी का रैंकिंग किया. ठीक है, लेट मी आस्क यू, बाय द टाइम वो डाउनलोड हो, मेरे को ये जानकारी चाहिए कि अगर आपको चॉइस दिया जाए कि इंडिया में 550 से नीचे आया, अभी आपको अब्रॉड जाना पड़ेगा, तो आप कौन सा कंट्री का सोचोगे? तो रिजल्ट्स आपके 33% बोल रहे हैं यूएस, 29% बोल रहे हैं रशिया, 25% यूक्रेन, 4% और 8% बेलारूस और जॉर्जिया. अब मैं आपको बताता हूँ रशिया का लिस्ट जो इंडियन एम्बेसी ने. सो ये जो 29% है रशिया वालों के लिए, मुझे लिस्ट बताना पड़ेगा कि देखो कैसे गवर्नमेंट ने क्लैरिटी के साथ में आपको बताया है. ये किसी और का नहीं है वेबसाइट, आप गवर्नमेंट का वेबसाइट देख रहे हो, इंडियन एम्बेसी का वेबसाइट देख रहे हो, वो कभी झूठ नहीं बोलेंगे. ठीक है ना? तो आपको ये, अभी आप बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट देखोगे, ये यूनिवर्सिटी में चले जाओ, वो यूनिवर्सिटी में चले जाओ. बोलो सर, एक तो आपके रशिया में लैंग्वेज का प्रॉब्लम, मैंने पहले ही बताया था, 400 डस्टबिन में डालना जरूरी है, 50 स्टॉप को आइसोलेट करना जरूरी है. एक बार आपके सामने सही चीज आ गई, फिर उसमें जाके लाइसेंस एग्जाम का तैयारी करके हम लोग पीजी तक आराम के साथ में जा सकते हैं. सो ये रशिया के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ केयर में आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं. टॉप वाली चूज करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. जैसे ही नीचे की रैंक चूज करोगे, रेटिंग्स फोर्ब्स रेटिंग्स है, एज पर यूरोपियन स्टैंडर्ड है. अगर आप नीचे जाते गए तो समझ लो आपका फ्यूचर ब्लीक होते जा रहा है, क्योंकि वहां पे इंग्लिश में सिखाएंगे नहीं. फॉर एग्जाम्पल, बहुत लोग पहले ट्वेयर स्टेट मेडिकल यू करते थे चॉइस. आप लोगों को कुछ नहीं करना है, यूट्यूब पे जाना, ट्वेयर मेडिकल यूनिवर्सिटी, इंडियन स्टूडेंट्स, फ्रॉड, स्कैम, ये सब डाल दो, आपको उसका वीडियोस मिलेगा एक एक इंडियन स्टूडेंट्स का. आप सिर्फ सुनोगे ना, डरना चालू कर दोगे, इतनी बुरी हालत है. ये सब नीचे की जो कॉलेजेस हैं, जो बहुत ही हालत खराब है, पर्म स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, बहुत ही, इसकी एडवर्टाइजमेंट चालू होती है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जब भयंकर बड़ी एडवर्टाइजमेंट देंगे. ठीक है ना? और देने के बाद में
आपको बोलेंगे एम्बेसी में आ जाओ, एम्बेसी में आपको मिलके यहीं पे ऑथेंटिक हम लोग ही अकेले, आप कर लो, यहाँ से कर लो। उसको पहले आपका अगर रिसर्च होगा तो आप सामने से बताओगे कि सर मेरे को नहीं जाना है, आप तो 25वें रैंक में हो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ केयर के अंदर, आई रियली एम नॉट इंटरेस्टेड, इफ आई हैव टू गो आई गो ऑन द टॉप वंस ओनली, टॉप 4 में है तो बात करो, अदरवाइज आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू गो टू रशिया, आई गो टू यूक्रेन, क्या प्रॉब्लम है। ऐसे ही मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर दूसरी 20-25 यूनिवर्सिटी मिलेगी, उसकी भी रैंक देख लो और WDOMS में चेक कर लो इनको, क्या गवर्नमेंट की है, क्या 100 साल का एक्सपीरियंस है, क्या मेडिसिन का 100 साल का एक्सपीरियंस है या कॉलेज पुरानी है। फॉर एग्जाम्पल बहुत जबरदस्त प्रमोशन चल रहा है कजान फेडरल का, यूट्यूब पे फेसबुक में, पीपल जस्ट दे आर आस्किंग अस, देख आस्क अस सर, क्योंकि आप ऑनेस्टली सब कुछ बता देते हो, क्लियरली आप चीजों को प्रूव करते हो, गवर्नमेंट वेबसाइट के हिसाब से आप बता रहे हो, तो हमको बताओ कि कजान फेडरल अच्छा है या कजान स्टेट अच्छा है। आपको मुझे पूछने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं यहीं पे बता देता हूं कैसे ढूंढना है। सर्च द वर्ल्ड डायरेक्टरी, आप रशियन फेडरेशन के अंदर आप कजान को ढूंढ लो, आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। इसमें मुझे भी पूछोगे तो मैं भी यही देख के बताऊंगा कि भाई तुम्हें क्या करना चाहिए, आपके सामने है, पूरे दुनिया की डायरेक्टरी सामने है यार, आपको कुछ नहीं, एक है कजान फेडरल और एक है कजान स्टेट। सारे एजेंट कजान फेडरल को चुना लगा रहे हैं, बोलते हैं 5 साल का कोर्स है, ऐसा हो सकता है? इंडिया में ऐसा हो सकता है कि आपको बोले मेडिसिन 4.5 साल का है, बट एक पर्टिकुलर कॉलेज में 3 साल में खत्म हो जाएगा मेडिसिन, ऐसा हो सकता है? सिस्टम बदल सकती है कोई कॉलेज के लिए? नहीं, पूरे रशिया में 5.8 इयर्स का सभी कॉलेज में एक स्टैंडर्ड, ठीक है, कजान स्टेट हो या कजान फेडरल हो, कहां पे भी 5 साल का कोर्स नहीं मिलने वाला। कजान फेडरल ढूंढो, आपको वीडियो मिलेंगे, बोलेगा 1804 की यूनिवर्सिटी है और इससे बढ़िया यूनिवर्सिटी पूरे रशिया में नहीं है, उसका जो प्रेसिडेंट पुतिन है उसका रिकमेंडेड यूनिवर्सिटी है। ये सब बकवास थियरी आएगी, फिर आप देखोगे मेडिसिन कब से सिखा रहा है ये, 2013 में। भाई पहला बैच अभी तो निकला है, ये ऐसी फालतू यूनिवर्सिटी में क्यों जाऊं मैं भाई। आपको मैं सिंपल चीज बता रहा हूँ, कजान फेडरल में जाना है तो वैसे ही किसी के थ्रू जाने की जरूरत नहीं है, वेबसाइट पे जाओ और सीधा अप्लाई कर लो, आपको डायरेक्ट एडमिशन लेटर आ जाएगा। अगर आपको कजान स्टेट जैसी यूनिवर्सिटी में जाना है जो टॉप एंड यूनिवर्सिटी है, आप चेक कर सकते हो, गवर्नमेंट भी है और 106 साल पुरानी है, और मेडिसिन को 106 साल हुआ है। अब इसमें कोई डाउट नहीं है कि गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट भी बोल रही है टॉप की यूनिवर्सिटी है, करेक्ट है, रेटिंग में भी सबसे ऊपर आ रहा है, खर्चा 22 लाख में पूरा MBBS हो सकता है, कोई हॉस्टल हॉस्टल सब गिन के आप गजब की यूनिवर्सिटी में जा सकते हो। आप अगर अपने क्राइटेरियाज को वर्ल्ड डायरेक्टरी में चेक करके जाओगे, स्टिक करोगे, टॉप रैंक यूनिवर्सिटी में इंग्लिश डॉट प्रोग्राम में जाओगे, तो कोई आपको, और लाइसेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करोगे तो MD MS तक जाओगे, MBBS को भूल जाओगे, आप बोलोगे सर MBBS तो मेरे को अभी गारंटीड हो गया। आई होप ऑल ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड that this needs a serious attention for all of you. Yeah, now I'll take you to the last part, and then Mr. Chirag is going to take over from here. He has to explain you how you will pass your license examination, the most important examination of your life. आप धीरे धीरे समझोगे, is not नीट, नीट के पास दो ऑप्शन है आपके पास, या इंडिया में कर लो या अब्रॉड में कर लो, बट नेक्स्ट का कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास।
ये अभी आपके स्क्रीन के ऊपर जो दिख रहा है ना, वो आपकी लाइफ का 9 से 10 साल है। मैंने पहले ही बोला था, ये 12th है। आपने नीट क्वालिफाई किया तो इंडिया और अब्रॉड के लिए आप क्वालिफाई हो। अगर 550 से ऊपर है तो इंडिया में आओगे, 550 से नीचे है तो अब्रॉड में जाओगे। You will select an advanced country with the top universities which are listed on world directories, and MOOCs will help you to prepare for the license examination, चाहे नेक्स्ट हो, चाहे USMLE हो, चाहे जर्मन का FSP हो। We will absolutely make sure that यहाँ से आपका हैंड होल्डिंग राइट अप टू पोस्ट ग्रेजुएशन आपका हम लोग करेंगे। आपको यहाँ पे कोई भी यूनिवर्सिटी में जाना हो, कोई भी जो अच्छी है, जो गवर्नमेंट है, जिसको 80-100 साल का एक्सपीरियंस है, और जो मेडिसिन में एक्सपीरियंस है, और जो सेफ जोन में है। मैं सेफ जोन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यूक्रेन के अंदर ईस्ट पार्ट इज नॉट वेरी सेफ। You can check the war zone in Ukraine, they will showcase to you. Lot of agents promote Kharkiv over here, Luhansk, Donetsk, ये सब होता है। आपको वेस्ट पार्ट में जाना है। तो हम लोग कोई भी यूनिवर्सिटी आप बोलोगे आपको प्लेस कर देंगे, अगर आप इसके ऊपर इंटरेस्टेड हो। मेन ये है, मेन ये नहीं है। यही तो आपको लाइसेंस दिलाएगा और आपको पीजी तक लेके जाएगा। सो आपका जो पूरा बजट के ऊपर डिपेंड है कौन से रास्ते पे जाएगा। कौन, who will stay where? Will you be in India? Will you be in US? Or will you be in Germany? These are the 3 places where you can get settled. You can plan your entire journey right from the beginning. You will prepare for FMG or USMLE or FSP based on the choice of your budget and choice of your country. If you give me this reply honestly, I can tell you where you will be without any doubt. I think this is the way you will be. The rest of the people can go right up to